اے ارض وطن آج بھی اپنا یہ عہد ہے، ہم حرف وفا خون سے تحریر کریں گے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ دفاع وطن کے لیے عوام اور مسلح افواج سیسا پلائی دیوار کی طرح ہیں۔ عسکری قیادت کا عزم۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی پر غور۔ خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ۔ امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کی تعریف۔ امن اور ترقی کا راستہ پراکسیز، دہشت گردی اور جہریت سے نہیں روکا جا سکتا۔ پہلگام واقعے کا مقصد مغربی سرحدوں اور اقتصادی بحالی کی کوششوں سے پاکستان کی توجہ ہٹانا ہے۔ پانی کا بطور ہتھیار استعمال انتہائی خطرناک۔ بھارتی ریاستی سرپرستی میں بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزیاں ناقابل قبول۔ بھارتی بلا اشتعال کارروائیوں کا مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار۔ پہلگام فالس فلیگ، چین کا پاکستانی موقف کی حمایت میں بڑا بیان۔ پاکستان نے ہمیشہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ چینی سفیر کی بھی پاکستانی موقف کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر اور چینی صدر کے سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے بھی پاکستانی موقف کی حمایت کر دی۔ کسی بھی جارحیت کے خلاف چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، ڈاکٹر وکٹر گاؤ۔ اقوام عالم کی جانب سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات کا مطالبہ پاکستان کے موقف کی جیت ہے، دفاعی ماہرین۔ فرینڈز آف کشمیر کی کال پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ پاکستانی، کشمیری اور سکھ کمیونٹی کی شرکت۔ مظاہرین کی مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی۔ پہلگام واقعہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا فالس فلیگ آپریشن تھا جو وقت کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویدار دار ہے، لیکن سکھوں اور کشمیریوں کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بے گناہ لوگوں کا قتل کر رہا ہے۔ مظاہرین جبراً حراست میں رکھے معصوم پاکستانیوں کے فیک انکاؤنٹرز کا منصوبہ۔ مختلف جیلوں میں قید افراد کو ماورائے عدالت قتل کے بعد دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو پہلے سے ہی ان افراد کی لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ سیکیورٹی ذرائع وہ رات کو کل ہمارے یہاں آسانیاں ہو گیا ہے، یہ دو ہمارے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پاکستان سمیت دنیا بھر کے میڈیا ورکرز کو خراج تحسین اور ان بہادر مرد اور خواتین صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران قربان ہو کر امر ہو گئے۔ ہمارا آئین رائے اور اظہار کی آزادیوں کا امین اور ضامن ہے۔ جدید دنیا میں آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو جھوٹ، فیک نیوز، پروپیگنڈے، غیر ملکی ایجنڈوں اور سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ پریس فریڈم ڈے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی آبی جارحیت، بے بنیاد الزام تراشی کا حقائق اور سچ سے مقابلہ کیا۔ جنگی ماحول پیدا کرنے کے مضمون بھارتی مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ حقائق کی فراہمی کی جدوجہد میں صحافیوں کی قربانیاں تاریخ کا سنہری باب۔ صحافت کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے میڈیا کے ذمہ دارانہ کردار کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ۔ ادارے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب۔ پولیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بھرپور طریقے سے فعال کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ پاکستان خود مختار ملک اور ایٹمی طاقت ہے۔ پاک فوج، فضائیہ اور نیوی ملکی سرحدوں کی محافظ ہیں۔
پائیدار ترقی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک نظریے کے تحت قائم ہونے والا ملک ہے۔ برآمدات کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی۔ ہم نوجوان نسل کو بہتر تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال کا لاہور میں بجٹ سیمینار سے خطاب۔ اپنی زمین اپنا گھر کے تحت 2000 پلاٹس دیے جائیں گے۔ اپنی زمین اپنا گھر میرے خواب کی تعبیر ہے۔ بے گھر اور بے زمین افراد کو پلاٹ دینے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ پنجاب کے مستحق اور نادار افراد کے لیے کام جاری رہے گا۔ گھروں کی تعمیر کے لیے لیے گئے قرضوں کی قسطیں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اپنی زمین اپنا گھر ای پورٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بھارت نے ہمیں حالت جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان کا احترام سب سے زیادہ مقدم ہے۔ ہم نے ہمیشہ ترقی کے ساتھ محبت اور پیار کا درس دیا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الپوری شانگلہ میں تقریب سے خطاب۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر کشمیریوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت تشویشناک ہیں۔ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ حریت قیادت کو زبردستی اور غیر قانونی طریقے سے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اقوام عالم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا فوری نوٹس لے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچرل آرگنائزیشن مشال ملک کی نیوز کانفرنس۔ سندھ طاس آبی معاہدے کی خلاف ورزی، بھارت اور پاکستان کے درمیان کھلی جنگ۔ پاکستان کا پانی موڑنے کی کوشش کی گئی تو پنجاب اور جموں و کشمیر مکمل طور پر ڈوب جائیں گے۔ پاکستان پہلگام حملے میں ملوث نہیں، مودی سرکار کی سازش ہے۔ بھارتی کانگریس کے سابق وزیر سیف الدین سوز نے پاکستان کا پانی روکنے کے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا۔ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਿਕ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਓ। भारत हमेशा से सिखों का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सिखों को इस्तेमाल करता रहा। भारतीय फौज ने पंजाब में हमेशा सिखों पर वहशियाना मजालिम किए। मशरकी पंजाब के सिख पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत का किसी सूरत हिस्सा न बने। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट मनप्रीत सिंह। قوم اور مسلح افواج شانہ بشانہ بھارت کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ جنگ مسلط کی گئی تو جواب دینا جانتے ہیں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات کی پیشکش ثبوت ہے کہ پاکستان کا دامن صاف ہے۔ سیاسی اور مذہبی قیادت کا دو ٹوک موقف۔ کوئی کمزور نہیں ہوتا، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں۔ دشمن یہ بات جان لے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہم امن پسند ہیں اور ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھیے۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آزمانا نہیں، ہم ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ کسی قسم کی جارحیت اگر دکھائی گئی تو اس کا جواب ویسے ہی آئے گا جیسے پہلے آتا رہا ہے۔ میں امن پسند ہوں اور امن کے لیے ہی کام کرتا ہوں۔ اسی اپنی فوج دے نال شانہ بشانہ کھڑے ہیں تے دعا گواں کہ ربا پوری دنیا وچ امن دی لہر رہے۔ آزمانا نہیں، ہم تیار ہیں۔ امن ہماری خواہش ہے، کمزوری نہیں۔ فن کی کوئی سرحد نہیں، لیکن فنکار وطن کی محبت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ اداکار اور فنکار بھی وطن عزیز کے دفاع کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت کا باعث۔ سینئر افسروں کی برطرفی کا سلسلہ جاری۔ خفیہ دستاویز لیک ہونے پر بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو ہٹا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ برطرفیاں فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی کا ثبوت۔ بھارتی عسکری قیادت اور سپاہی ذہنی دباؤ کا شکار۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 43 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ وسطی غزہ میں ایک فلاحی تنظیم پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 5 افراد شہید اور متعدد زخمی۔
اسرائیلی محاصرے کے باعث خوراک کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ادویات کی شدید قلت، طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث بھی لاکھوں فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں۔ پاکستان سپر لیگ میں آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہونے والا مقابلہ رات 8 بجے شروع ہوگا اور PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ میچ کے دوران چائلڈ کینسر سے آگاہی کا دن بھی منایا جائے گا۔ کھلاڑی گولڈن کیپس کے ساتھ گولڈن ربن پہنیں گے۔ پیلا لباس پہن کر اسٹیڈیم آنے والی فیملیز کو اعزازی پاسز دیے جائیں گے۔ لاہور میں پاکستان سپر لیگ کا 22واں میچ پشاور زلمی کی ایونٹ میں تیسری کامیابی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ زلمی نے 144 رنز کا ہدف 17ویں اوور میں 4 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کپتان بابر اعظم نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ماں صداقت نے 55 رنز بنائے۔ PSL کے تمام میچز دیکھیے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ ہسپانیہ میں ATP ماسٹرز 1000 میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ فائنل برطانیہ کے جیک ڈریپر اور ناروے کے کیسپر روڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں جیک ڈریپر نے اٹلی کے لورینزو مسیٹی کو شکست دی۔ کیسپر روڈ نے ارجنٹینا کے فرانچیسکو سیرنڈولو کو ہرایا۔ اور چین میں بیڈمنٹن انٹرنیشنل ٹورنامنٹ سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ میزبان چین، انڈونیشیا، جنوبی کوریا اور جاپان نے لاسٹ 4 میں جگہ بنائی۔ کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن چین نے ملائیشیا، جاپان نے تائیوان کو مات دی۔ انڈونیشیا نے تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا نے ڈنمارک کو شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین۔ میں ہوں ہما ملک۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں 2 ٹوک اعلان کر دیا گیا ہے کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیوں کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں ہونے والی خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کی تفصیل انیس آوان سے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کے لیے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں راولپنڈی میں خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ISPR کے مطابق اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال کا جامع جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان بھارت کشیدگی اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے مختلف امور زیر غور آئے۔ فورم میں پاکستان کی مسلح افواج کی کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کے خلاف ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، ثابت قدمی، حوصلے اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ آرمی چیف نے تمام فارمیشنز اور اسٹریٹجک فورسز پر اپنے مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بالخصوص پہلگام فالس فلیگ واقعے کے بعد بھارتی فوج لائن آف کنٹرول پر معصوم شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ فورم نے تشویش ظاہر کی کہ بھارتی فوج کی غیر انسانی اور بلا اشتعال کارروائیاں علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہیں، جس کا مؤثر اور مناسب جواب دیا جائے گا۔ کانفرنس کے شرکاء نے بھارت کی جانب سے سیاسی اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے مستقل طور پر گھڑے جانے والے خود ساختہ بحرانوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔
किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी और इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए पहले से तयशुदा तरीकाकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग वाकयात से भारत यकतरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है, जैसा कि 2019 में देखा गया जब भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मजीद कहना था कि पहलगाम के हालिया वाक़े का मकसद भी पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामिल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि भारत को इन मजमूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सियों को फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। शुरकाए फोरम ने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसी तनाजर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंध-तास मुआहदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हकूक को गस्ब करने के दर पे है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती सरपरस्ती में होने वाले भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने इस बात का भी आयादा किया कि पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता किसी भी बिला वास्ता या प्रॉक्सीज के जरिए फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, चीन का पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत में बड़ा बयान। पाकिस्तान ने हमेशा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। चीनी सफ़ीर ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर और चीनी सदर के साबिक मुआविन डॉक्टर विक्टर गाओ ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि किसी भी जारहियत के खिलाफ चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। We always called for a thorough investigation into what exactly is happening behind the scene, who was pulling the trigger, who was committing all these atrocities. And I think China is using the same philosophy to apply to this particular round of attack. This is time for both India and Pakistan and all the other stakeholders to work very closely to get to the bottom of the situation, rather than allowing this attack. The point is very simple. We need to call for impartial and complete and thorough investigation. China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. दिफाई माहिरीन का कहना है कि अक़वाम आलम की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है और भारत ने ऐसे 20 पाकिस्तानियों को जो गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाल कर जाली मुकाबलों में मारने का शर्मनाक मंसूबा बना लिया है। मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक जाली मुकाबले के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोज़ और तस्वीरें फराहम की जाएंगी और इन अफराद को पाकिस्तान से आने वाले दहशतगर्द जाहिर कर दिया जाएगा। इस मज़मूम मंसूबे का मकसद पहलगाम फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करने की एक और मनगढ़ंत कहानी बनाना है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कुछ हिरासत ज़दा इन अफराद को ज़िंदा दहशतगर्द जाहिर करके मीडिया के सामने पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और एतराफ़ जुर्म के बयान भी दिलवाए जा सकते हैं। गुज़श्ता दिनों DGISPR वाज़ेह कर चुके हैं कि 723 पाकिस्तानी अफराद भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार जाने पर भारतीय फ़ौज ने ज़ालिमाना तरीके से फेक इनकाउंटर में मार दिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारहियत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया और जंगी माहौल पैदा करने के मज़मूम भारतीय मकासद को खाक में मिलाया। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी मीडिया के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर अपने पैगाम में इस उम्मीद का इज़हार किया कि हमारा ज़िम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान का आइन आज़ादी इज़हार राय का ज़ामिन है। हुकूमत ने सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि मुकालमे के फ़रोग़ और मसाइल उजागर करने में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सदर ममलकत ने कहा कि आईन पाकिस्तान आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत देता है। जमहूरी अमल में अवाम की शिरकत, बदनुवानी बेनकाब करने और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस ब्यूरो के दौरे के दौरान इदारे की कारकर्दगी और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत की। DG पुलिस ब्यूरो अब्दुल खालिक शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि इदारे को तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि माजी में इस इदारे पर तवज्जो नहीं दी गई। पुलिसिंग निज़ाम बेहतर बनाने में नेशनल पुलिस ब्यूरो का किरदार अहमियत का हामिल है। नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। वज़ीर दाखिला ने रिसर्च और एनालिसिस के लिए फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर की खरीदारी की हिदायत भी जारी की। हमने सियासी कीमत पर मुल्क को बचाया, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लाहौर में बजट सेमिनार की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महंगाई 38% से 2.5% और शरह सूद कम होकर 12% पर आ गई है। मौशी अशारिये मुस्बत हैं। तरक्की के लिए पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। एहसन इकबाल ने कहा कि हम कट्टे नहीं देंगे, नौजवानों को डिजिटल स्किल्स और कंप्यूटर्स देंगे। वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरज़ादा ने बहावलपुर में ई खिदमत मरकज़ का दौरा किया और कहा कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हुआ है और आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर हुआ है। रियाज हुसैन पीरज़ादा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आवाम की बेहतरी के लिए बहुत अहसन इक़दाम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ही छत के नीचे 160 से ज़्यादा आवाम को सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, जो एक नेमत से कम नहीं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि कोशिश करूँगा कि यहाँ एक पासपोर्ट डेस्क भी कायम हो ताकि आवाम को एक ही छत के नीचे सारी सहूलियात मुयस्सर हों। वफाकी वज़ीर ने खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ डेस्क का विज़िट भी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि पंजाब के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। पंजाब के मुस्तहक़ और नादार अफराद के लिए काम जारी रहेगा। लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पिछली हुकूमतों ने बरसों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत के हर मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ बहुत खुश होते हैं। घरों की तामीर के कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बेघर और बेज़मीन अफराद को प्लॉट्स देने का मंसूबा शुरू किया गया है। अपनी ज़मीन अपना घर के तहत 2000 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर मुतल्लिका फोरम से रुजू करेंगे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि भारत को आलमी सतह पर वो पजीराई नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत के लगाए गए इल्ज़ामात पर दुनिया ने यकीन नहीं किया। भारत अब अपने ही बयानिए का मुख्वी हो चुका है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTV के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी ने बिहार इंतखाबात के लिए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। भारत को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद आलमी सतह पर नाकामी हुई है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तमाम दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत को नाकामी हुई है नैरेटिव फ्रंट के ऊपर। पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के एंकर्स, जर्नलिस्ट ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, सब ने मिलकर एक किरदार अदा किया है। इससे एक यूनिफाइड आवाज पाकिस्तान से बाहर गई और हमने 24 घंटे काम करके काउंटर किया इनके प्रोपेगेंडा को। सफारती महाज पे भी पाकिस्तान ने
अच्छा परफॉर्म किया है और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया है, चाइना ने, टर्की ने, और यूएस से अच्छी बातचीत हुई है। भारत बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, वॉइसेज ऑफ डाइसेंट उठ रहे हैं। कोई सीएम की स्टेट का उनके खिलाफ बात करता है, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया, जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन, सारे उनको सवाल कर रहे हैं कि ये आपने क्या किया, और इंडस वाटर ट्रीटी पे भी सवाल करें कि आप कैसे नल कर सकते थे। जो एविडेंस की बात है, इकोनॉमिस्ट से लेके, अल जजीरा से लेके, द डिप्लोमेट से लेके, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह पे, टाइम के अंदर हर जगह पे लैक ऑफ एविडेंस की बात की गई है। और इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली। आई थिंक मास्टर स्ट्रोक था पाकिस्तान का कि हमने एक इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का कहा। ये साबित करता है कि आवर हैंड्स आर क्लीन। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन भारत ने हमें हालत जंग में धकेल दिया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अलपुरी शांगला में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान का एहतराम सबसे ज़्यादा मुक़द्दम है। हमने हमेशा तरक्की के साथ मोहब्बत और प्यार का दर्स दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पानी पर भारतीय प्रोपेगेंडा फिर बेनकाब। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान के लिए पानी लाइफलाइन है, क्योंकि ये ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल होता है। सैफुद्दीन सोज ने कहा कि पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू और कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी बरादरी बारीक बीनी से देख रही है। साबिक कांग्रेसी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं है, जो कि मोदी सरकार की एक साजिश है। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। अमन हमारी ख्वाहिश है, इसको कमजोरी ना समझा जाए। फन की कोई सरहद नहीं, लेकिन फनकार वतन की मोहब्बत में किसी से पीछे नहीं। अदाकार और फनकार भी वतन अजीज के दिफा के लिए पाक फौज के शाना बेशाना। खाना मत, कौम तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। अमन चाहते हैं, इसीलिए चाहिए। साडे प्यार में साडी कमजोरी न समझा जाए। हम अमन चाहते हैं। हम सब पाकिस्तानी एक हैं। ये मुल्क हमारा है और हम इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं। अमन को हमारी कमजोरी भी न समझा जाए। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर पूरे पाकिस्तान को नाज है। हम हर किस्म की जाहिलियत का जवाब देना जानते हैं। हम अमन चाहते हैं। अमन को हमारी कमजोरी न समझा जाए। ताकि जारियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। दुश्मन ये बात जान ले कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम तैयार, आजमाना नहीं। चेयरपर्सन पीस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया भर के सामने हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को बदतरीन तरीके से बेदखल किया जा रहा है। अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का फौरी नोटिस ले। उन्होंने कहा कि हुर्रियत क़यादत को ज़बरदस्ती और गैर कानूनी तरीकों से जेलों में डाला जा रहा है। निहत्ते कश्मीरियों के हर घर से रोज़ाना जनाजे उठते हैं। मिशाल मलिक ने कहा कि रोज़ बरोज़ पाक भारत ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत की जानिब से जाफर एक्सप्रेस जैसा कोई भी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा कश्मीरियों पर डाल दिया जाता है। पहलगाम वाक़े के बाद कश्मीरी खानदानों को जुदा किया जा रहा है। मिशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में मोदी ने अपने अवाम को मार दिया। मोदी के लिए अपने अवाम को मारना कोई बड़ी बात नहीं। उधर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने वाशिंगटन के भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे की कॉल फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने दी थी। एहतजाजी मुजाहरे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कश्मीरी तंजीमें और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहरीन ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब, सिख फॉर जस्टिस के मरकजी रहनुमा और दीगर ने खिताब किया। मुक़र्रीन का कहना था कि पहलगाम वाक़या दरअसल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो वक्त के साथ साबित हो रहा है।
हम भारतीय हुकूमत और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दुनिया जान गई है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से किसको फ़ायदा हुआ। मोदी की हिंदुत्वा हुकूमत कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, जिसके सबूत दुनिया के सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर एक बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान की आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ी शराकतदारी कायम हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की ज़ेर मलकियत 60% शेयर रखने वाली कंपनी का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से मुआहिदा हुआ है। यह मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत के साथ कशीदगी अपने उरूज पर है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। ट्रंप फैमिली के एरिक ट्रंप, डोनाल्ड जूनियर और बारन ट्रंप नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ट्रंप फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद आलमी सतह पर बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान की आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ी शराकतदारी कायम। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की ज़ेर मिल्कियत 60% शेयर रखने वाली कंपनी का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से मुआहिदा हुआ है। यह मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत के साथ कशीदगी अपने उरूज पर है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। KMS के मुताबिक काबिज अफवाज ने श्रीनगर में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा घरों पर छापे मारे। फौजियों ने बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, बडगाम, शुपियां, कुलगाम, इस्लामाबाद, पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी और पुंछ अजला में भी छापे मारे। भारतीय फौजियों ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप समेत डिजिटल आलात कब्जे में ले लिए, लूटमार की और मकीनों को हिरासत किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से मकबूजा इलाके में 2500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 3 दर्जन मकानात को मिसमार किया गया। भारतीय हुकाम ने जिला पुंछ में एक और कश्मीरी मोहम्मद रियाज को एक कनाल 11 मरले पर मुश्तमिल आबाई ज़रई अराजी को काले कानून के तहत जब्त कर लिया है। काबिज हुकाम ने दावा किया है कि मोहम्मद रियाज एक आज़ादी पसंद कारकुन है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में एक बड़े इज्तिमा से खिताब में कश्मीरियों के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने भारतीय फौजियों की जानिब से 2 कश्मीरी नौजवानों अल्ताफ लाली और गुलाम रसूल के जारी मुकाबलों में कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुतासरा खानदानों ने दोनों नौजवानों के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि हजारों कश्मीरियों को जबरी तौर पर गिरफ्तार और धमाका खेज मवाद के जरिए मुतादिद घरों को तबाह कर दिया गया। मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीरियों को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम करने की भारतीय मीडिया की मुहिम की भी मजम्मत की, जिसके बायस भारत भर में मुकीम कश्मीरी तलबा और ताजरों में शदीद खौफ फैल चुका है और बहुत से कश्मीरी घर वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं। जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट मनप्रीत सिंह कहते हैं कि भारत हमेशा से ही सिखों का दुश्मन रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सिखों को इस्तेमाल करता रहा है। भारतीय फौज ने पंजाब में हमेशा सिखों पर वहशियाना मजालिम किए। मशरकी पंजाब के सिख पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत का किसी सूरत हिस्सा न बने। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ 2000 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 65 ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 65
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੋਕੀ ਲੈ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय प्रोपेगंडा पूरी दुनिया के सामने खुलकर वाज़ेह हो चुका है। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा और अरकान असम्बली भी मोदी सरकार की फिसायत की भरपूर मज़म्मत कर रहे हैं। तफसील बताएंगे कोयटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान में भी एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी होता जा रहा है। पहलगाम वाक़े के ख़िलाफ़ जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर एहतजाज का सिलसिला जारी है। न सिर्फ समाजी हलकों में बल्कि सियासी हलकों में भी हम देख रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर मजम्मत की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर, इनसे हम बात करेंगे। जो इस वक्त पोजीशन चल रही है इंडिया की तरफ से, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह उसमें वो नाकाम होगा, चूँकि ये हमेशा उसका वतीरा रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हैं कि उसने अपने इंटरनल मसाइल को छुपाने के लिए, अपने लोगों को जो असल इश्यूज़ हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए अपने लोगों के ऊपर। इससे ढकी छुपी बात नहीं। अब इंडियन मीडिया जो वहाँ का एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद मीडिया है, जो एक सेक्ट है या वहाँ की एक सिविलाइज सोसाइटी हो, इस बात को भी एक्नॉलेज करती है कि इंडिया जो है, ये मोदी सरकार जो है वॉर की तरफ चीज़ों को ले जाना चाह रहा है, क्योंकि वॉर बेनिफिशरी है। कभी वो जो है मुसलमानों के अगेंस्ट चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता है, कभी जो है वो दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ चीज़ों को, या हिंदुत्वा का जो एक बड़ा सोच है, जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने दल बनाए हुए हैं जिससे वो मुसलमानों को या दीगर जो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको जो है टारगेट करने के लिए और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर यूनुस अजीज़ ज़हरी साहब, इनसे भी पूछेंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर इनका मौक़िफ़ क्या है। जब भी इंडिया में मोदी सरकार को ख़तरा कहीं से लाक होता है अंदरूनी उसके अपने स्टेट्स में, तो वो यही हरबे इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान का नाम लेके ताकि अपने में इक़्तिदार को तूल दे दूँ। तो इसके ये हरबे हर वक्त इसी तरह चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि अभी बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इसको पहचाना गया और पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तानी फ़ौज इतनी कमज़ोर भी नहीं है कि मोदी की हम भड़कों में आ जाएंगे और मोदी कहेगा कि मैं हमला करता हूँ, जी बिस्मिल्लाह आप आ जाए, हम भी देख लेंगे आपको। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अपने पाक फ़ौज के साथ है। ये जो मोदी है, जिस तंजीम का सरबराह रहा है, वो अहमदाबाद और गुजरात के मुसलमानों का कातिल है। हज़ारों मुसलमानों ने कत्ल किए वहाँ पे। इसी तरह बतौर रियासत इंडिया का कश्मीर के लाखों मुसलमानों का कत्लेआम गुज़श्ता कई सालों से वो कर रहा है। भारत का मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन असल जो है मुल्क के अंदर यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, लोगों को यकसू करने की ज़रूरत है और लोगों को गले लगाने की ज़रूरत है और सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। हमारी सफ़ें मजबूत होंगी तो हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। फौरी और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है और अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटीज सर्विस चीफ्स की भी साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट न्यूज़ और कंट्रोलर राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजाद, आगाह कीजिएगा, कामयाब तजुर्बा किया है अब्दाली मिसाइल का पाकिस्तान ने, क्या अपडेट्स हैं? जी मुनाज़र, आज पाकिस्तान को अपनी दफाई सलाहियत के हवाले से एक नहायत मजीद एक अहम संग मील आज हमने अबूर किया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने आज ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 450 किलोमीटर की सलाहियत के हामल कामयाबी से अब्दाली वेपन सिस्टम का जो है वो तजर्बा किया है। और ये तजर्बा अब्दाली वेपन सिस्टम का जो है वो जंगी मश्क इंडस के दौरान किया गया। ये जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है अब्दाली, ये 450 किलोमीटर तक दुश्मन के एरिया में अपने हदफ को नहायत ही दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की अहलियत रखता है। और इस जंगी कामयाब तजर्बे का मकसद जो है वो अपने वेपन सिस्टम की टेक्निकल जो पैरामीटर्स है उसकी जांच पड़ताल करना था। इस हवाले से जो ट्रेनिंग लॉन्च की गई है, इसमें कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, उसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के आला हुकाम और जो इस तजर्बे में शरीक इंजीनियर साइंसदान है, उन्होंने इस कामयाब अब्दाली वेपन सिस्टम के तजर्बे को देखा। इस मौका पर पूरी फिजा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों जो मुसल्लह अफवाज उनके सरबराहों ने इस कामयाब मिसाइल टेस्ट पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी और इस कामयाब टेस्ट में हिस्सा लेने वाले ट्रूप्स को भी मुबारकबाद दी। इस मौके पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया, जिसके मुताबिक जो मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के हवाले से जो तैयारियां की गई हैं, इस पर पूरी कौम को उन्होंने मुबारकबाद दी। और ये मौजूदा जो हालिया कशीदगी है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का ये कामयाब तजुर्बा दुश्मन को एक भरपूर पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए ना सिर्फ तैयार है, बल्कि इस दफा अगर किसी ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जी मुनाज़र, बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम आपका। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत, दुश्मन को पैगाम के पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्कीर। अगर आप इस तरह न करते तो वही चीज़ आगे से आगे फैल जाना थी, मगर आपने यार डट कर दलीरी से शागला से शुरू करके पूरे मलाकन डिवीज़न सवात और फिर मुख्तलिफ ट्राइबल एरिया में आपने मुकाबला किया और पाकिस्तान का झंडा लहराया। अब भी जिस तरह अल्लाह न करे कोई लहराती है तो मुझे आप पर यकीन है कि आपने माजी में भी अब भी डट कर मुकाबला करेंगे। और आज मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, मैंने ये बात कश्मीर में भी की कि हमारे आबा अजदाद जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की 47-48 में, तो हमारे आबा अजदाद अपने देसी असलहा पटाखदार बंदूकों के साथ वही कश्मीर पहुंच गए। कई दिनों में इतनी मुसाफत तय की और कश्मीरियों के साथ खड़े हो गए और वही जो कश्मीर का खित्ता आज़ाद है उसमें उनका खून भी शामिल है। मैंने कल भी कश्मीरियों को ये यकीन दिलाया और पूरे पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी ज़रूरत पड़ी तो ये लोग जो पहाड़ों में रहते हैं किसी से पीछे नहीं होंगे, सच्चे लोग हैं, एक बात करने के लोग हैं, दलेर लोग हैं और ये हर मुश्किल के सामने खड़े होने वाले लोग हैं। तो इंशाअल्लाह आपसे तवक्को रखता हूँ कि जो मुल्की हालात है उसमें जो भी ज़रूरत पड़ी तो आप हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेंगे, सबसे लीड का किरदार अदा करेंगे और सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये आज मेरे आपसे मुलाकात हुई,
इलाके की मसाइल और इन बातों की आप सबकी मेरे साथ राबिता होता है फ़ोन पर, इस पर, और इंशाअल्लाह ताला हमसे जो कुछ हो सकता है गिनने की जरूरत नहीं। हमारी सारा मरना जीना सब कुछ आपके लिए माजी में भी साबित किया है, आइंदा भी हमसे जो कुछ हो सकता है। आप परेशान की बात नहीं, आपका हक है और हमारा फर्ज है, आपके लिए वही फर्ज अदा करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो कौन है पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाक फौज, अमीर मुकाम कदम बढ़ाओ, अमीर मुकाम कदम बढ़ाओ। तो मैं एक दफा फिर आपसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा तो ख्वाहिश है, दिल है कि आपके साथ बैठा रहूं, मगर मेरी जिम्मेदारी भी इतनी है। इतने दिन कश्मीर में रहा, अभी गिलगित बल्तिस्तान की वफद एक हफ्ते से इस्लामाबाद में बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर उसकी कैबिनेट, तो उनके साथ आज रात को भी मीटिंग रखी है और कल भी। तो मुझे वापस जाना कर, अदरवाइज मेरा दिल चाहता है कि आप सबके साथ बैठा रहो, आपको सुनता रहो। तो बहरहाल मेरे साथ मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे दे कि आप लोग मेरे साथ जो मोहब्बत करते कि मैं इस पर पूरा उतर जाऊँ। बात यह कि जो वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर सैफरान इंजीनियर अमीर मकाम गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत को इल्ज़ाम तराशी की आदत है, वतन के दिफा के लिए सब मुत्तहिद हैं, किसी भी किस्म की जारहियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय मज़ालिम के मज़ीद हक़ाइक़ सामने आने लगे। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के पुलिस एहलकारों का एहतजाज, मुसलमान कश्मीरी ख़वातीन का भारत माता की जय के नारे से इनकार और भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिशें आलमी बरादरी को भारतीय जुल्म की हकीकत से आगाह कर रही हैं। तफसील बताएंगी आयशा आफरीन। पहलगाम में होने वाले वाक़े ने भारत के मकरू अज़ाइम को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। भारत ने इस वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर न सिर्फ आलमी बिरादरी को गुमराह करने की कोशिश की, बल्कि कश्मीर में अपने गासबाना कब्जे को मुस्तहकम करने के लिए नए हरबे आजमाना शुरू कर दिए। भारत ने कश्मीरियों को जबरदस्ती बेदखल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कश्मीरी पुलिस में 27 साल से खिदमत अंजाम देने वाले एक एहलकार की वीडियो ने मोदी सरकार की इंसानियत सोज अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। एहलकार का कहना है कि भारतीय पासपोर्ट होने के बावजूद उन्हें जबरन मकबूजा कश्मीर से बाहर भेजा जा रहा है। किस तरीके की अंदर कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप रातों रात उनको लेके यहाँ से अटारी बॉर्डर निकल गए। डी साहब नहीं सुन रहे, एसएसपी साहब नहीं सुन रहे, डायरेक्ट किया हुआ है डी साहब को एसएसपी साहब को पहुंच के भाई इनको यूटी जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं भेजना है, ये हाई कोर्ट का कहना है। उसके बावजूद भी ये हो रहा है। वो पाकिस्तान में आपका कौन है? कोई भी नहीं, जो रिश्तेदार है वो सारे यही है, ये सारे ही हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद कश्मीरी अवाम ने भारत से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। भारतीय मर्द की जानिब से बार बार भारत माता की जय कहने पर उकसाने के बावजूद कश्मीरी खवातीन ने इनकार करके अपनी आज़ाद शनाख्त और कश्मीर की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। कश्मीरी भारत एक ही है, कश्मीर का है, भारत अलग है। भारत माता की जय बोलता नहीं। क्यों? हम मुसलमान हैं। मोदी सरकार की सरपरस्ती में भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अब इंतहा को पहुंच चुकी है। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों और कारोबारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू गिरोह मुसलमानों के कारोबार पर हमले कर रहे हैं और उन्हें दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। रैलियों में ऐलान किया जा रहा है कि अगर किसी दुकान में मुसलमान मुलाजमीन नजर आए तो उनकी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उनको अपने दुकानों से निकाल दे, सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे और उसको कौम का गद्दार घोषित करेंगे। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पहलगाम का वाक़या एक साजिश का हिस्सा है, जिसमें भारत अपने दाखिली बहरानों और कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आलमी बिरादरी को भारतीय इक़दामात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए और मकबूजा कश्मीर में जारी संगीन इंसानी जराइम का नोटिस लेना चाहिए। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और पाकिस्तानी आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा में आमद का सिलसिला जारी है। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक मदीना मुनव्वरा 35 हज परवाज़ों के जरिए 8,890 आज़मीन हज पहुँच गए। आज 12 परवाज़ों के जरिए मज़ीद 3300 आज़मीन कराम मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। सऊदी अरब की नुस्क ऐप के जरिए रियाजुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी जारी है। मदीना मुनव्वरा पहुँचने वाले
اولین عازمین حج کے قافلے 7 مئی کو مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ عازمین حج مکہ پہنچ کر پہلا فرض عمرہ ادا کریں گے۔ مدینہ منورہ آمد پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام پیش کرنا ہر امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے اور امتی کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سعودی عرب سے بلال شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے حاضری کا تعلق باب عشق سے ہے اور مدینہ شریف میں موجود ہر عازم حج اور نبی کی امتی کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں اپنے عارضی قیام کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ رسول پر روزانہ حاضری دے، یہاں کی سنہری جالیوں کو اپنی نگاہوں میں قید کرے اور دل کو ازلی سکون کی اکسیر حاصل کرنے کے لیے یہاں سلام پیش کرے۔ یہ فخر موجودات اور آقائے دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہے۔ یہاں داخل ہونے کے آداب سورۃ الحجرات میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ شام ہو جائے۔ یہاں آنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ وقار، سکون اور تعظیم و تکریم ملحوظ خاطر رکھے۔ جس جگہ سے گزرے یہ خیال دل میں رکھے کہ یہ مٹی آقائے دو عالم کے مبارک قدموں کو چوم چکی ہے اور دعا کرے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، مگر ہم نے بھی ٹھان رکھی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مسجد النبوی، مدینہ منورہ۔ قیام ہو ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی اور جنوب مشرقی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور مستدار بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بینظیر آباد، موہنجو داڑو، پڑیدن، سکرنڈ 46، دادو 45، جیکب آباد، مٹھی اور لسبیلا میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 45% سے زیادہ ہے، جس کے باعث گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہو چکی ہیں جو 15 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔